सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता जगत जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वरी जगत जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वरी नित्या सत्या सनातना पराशक्ति परमेश्वरी नित्या सत्या सनातना पराशक्ति परमेश्वरी विश्वधारिणी मंगलकारिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला निराश्रया सर्वेश्वरी सहज योगिनी निर्मला निराश्रया सर्वेश्वरी प्रेममूर्ति हंसवासना स्नेहमयी मातेश्वरी प्रेममूर्ति हंसवासना स्नेहमयी भक्ति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला अभी प्रोग्राम बना रही है कहने में माँ की एक पूरी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ और उसको रिलीज करना चाह रहा हूँ थोड़ा समय दे दीजिएगा और आपके दर्शन विश्ववन्दिता निर्मला माता
मोठी मंडळी तिकडे केवढी गर्दी करून सब लोग खड़े हैं। अच्छा उनको मैंने कहा कि इधर ले आएं किसी तरह से, या कोई मार्ग इधर बना दें। बहुत लोग हैं अंदर, यहाँ से दिखाई दे रहा। उसने कर दिया। देखिए वो लोग जो अंदर आ नहीं पा रहे हैं ना, वहाँ जगह बनाइए तो लोग अंदर। सभी भाइयों से प्रार्थना है जो साइड में खड़े हैं, यहाँ पर जगह काफी इस तरफ आ जाइए प्लीज। अंदर जगह है, कृपया आके बैठ जाइए, साइड में काफी जगह है, सब लोग बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। श्री माता जी, हम सभी दिल्ली के भाई बहन जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी तो गर्मी हो रही है, पसीना बात है। तुम्ही एकच रस्ता ठेवलाय ना, त्याच्यामुळे ते येऊ नाही शकत तिकडनं, त्यांना बोलवायला पाहिजे. तो गिरे जा रहे हैं. सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार. ऐसा कहा गया है मुझसे कि शुरुआत में अंग्रेजी में बोलिए और बाद में हिंदी में बोलें. आप है, आप ये सब मंजूर है ना? I bow to all the seekers of truth. At the very outset, we have to know what is the truth. And what are we seeking? Why this seeking has started in these recent years? We have science by which we have overgrown outward. We have different devices by which our life has become more comfortable maybe. But science cannot answer many questions.
And one of the questions it cannot answer is why are we here on this earth? Also, science is amoral. It does not give you any line of action that will benefit you and that will nourish you. Of course, there is nothing against science as such, but it is very incomplete and takes people into imbalances. There are so many defects which I am not going to describe today, but main thing is that it does not give you the idea of reality. It does not give you the totality. Also, it does not give you any ascent in your spiritual life. So much in the West, also in India, not to that extent, but yes, quite a lot. We have progressed in science in every way. What do we find? There's a decline in the character of human beings, in the society. Families are breaking, children are going astray. Everywhere we find there's such a decline in the quality of life, and sometimes we cannot also say that these things are done even by human beings. It's impossible to explain why people have fallen to such a low level of existence and think that that is the best life. They have lost all the capacity to feel that we are going very fast towards our complete destruction. In the West, I think the destruction is working out from within. And this destruction is not even felt. On the contrary, people think they are martyrs if they are getting destroyed. So, the seeking has started. The human beings are now faced with the problem as to why are we on this earth? Are we here just to get into this rut of this rat race? Or are we here just to ensure our lives and ultimately die? Is that the aim of our life? Is that the value of our life? In the West, I must say, there have been very few talks about the inner life, about the inner self. And even in India, there has been so much of work done. But after the British, when they went away, we suddenly took also, especially our intellectuals have become very westernized. They cannot think that India had anything sensible with it that they could talk about. About anybody they write left and right and try to spread in a way that Western ideas of modernism. This modernism, if it had brought any kind of good results, one would have accepted. Sitting down here in India, we don't know what they are up to, in what conditions they are, how terribly disturbed they are, what problems they are facing. We have no idea. We have only one problem, is of our poverty. Also, when we start copying them, we will have the same problems coming into us. So it is important that also the West must understand that they must see that this great tree they have produced of modern civilization must have its roots somewhere. And where are those roots? And without the nourishment from the roots, how are they going to prosper? How are they going to live? How are they going to exist? How are they going to enjoy their life? The roots are in this country. This is a great country of yoga. It's vibrated with
the all-pervading power of divine love. Though we Indians are not yet aware of it, that to be born in this country itself is a great boon. Neither they are aware as to what work has been done by the great saints in this country and how much they have worked hard, that one day this country should spread spirituality all over the world. Without that, you are still not complete. We are human beings, we have reached the stage of human awareness, but we do not know what is the absolute truth. We are living very, very relatively. Some people think this kind of government is good, somebody thinks that kind of government is good, somebody thinks that economics should be like that, another things like that. And there's all the time discussions, arguments and fighting going on. Ultimately we end up in wars. This relative life that we have doesn't give us any clear-cut idea as to what is the absolute. Unless and until we find that absoluteness, we cannot understand the truth. So those who are seeking truth have to strive to know the absolute. At this human awareness, the problem is that we are either involved with our body, mind, also so-called spirituality, emotions. All these are just appendages, you could say, appendages for your being. We say, this is my body, this is my body, this is my mind, this is my mind, this is my emotions, this is my house, this is my wife. Who is this man? Who is the one who owns it? The one who owns it is the spirit. Is the spirit in your heart. The spirit which has not yet come into your attention. The light of the spirit has not yet come into your attention. That's why you think you are this body, you are this mind. You are not. You are the pure spirit. You are, whether you know it or not. Also, there's another thing one has to know, that there is the all-pervading power of divine love, which does all this living work of producing these beautiful flowers, running our heart, looking after our digestion. Every sort of a living work is done by this all-pervading power of divine love. In Sanskrit we call it Brahma Chaitanya. Whatever you may call it. In the Bible it is called as the cool breeze of the Holy Ghost. It is the power of the Holy Ghost. Also in Quran it is called as Ruh. In the religions where they have talked about Nirakar, about formless, they have talked about. So this all-pervading power of Param Chaitanya exists, and we have to get united with that. That is the real yoga. Standing on your head and doing acrobats is not yoga. Or reading books and doing mental acrobats is also not. What is important is that you have to grow above your mental capacity. All the Western world is full of mental projections, and these mental projections are linear in their nature. They go up to a point, but they are not substantiated by truth. So they decline and they fall. So we have now declined in all our standards. Say now we cannot have people like Mozart, Bach, Strauss, we cannot.
We cannot have people like Leonardo da Vinci or any one of those great artists, because we have lost our capacity even as a human being, and we are trying to do something which has no even the power of humanity. Thus, this decline is so obvious and evident in every walk of life, everywhere you see. Even in India, you see that very much so. We cannot blame anybody for that, because so far we have not found the absolute truth. Unless and until we have found out the absolute truth, how can we know what is the right thing? Now whatever I am telling you, you need not believe me, because blind faith has never helped us. But whatever I am telling you, you can take it as a hypothesis. And if it works, then you have to accept as divine laws. And if it works in such a way that you obviously see it is working, that you can work it out, then of course you should not deny it. I think there are many people who are talking about it all over the world. Except in India, the intellectuals have become really, I don't know, deaf and dumb. But otherwise, in other countries I've seen everywhere, you'll find at least 3 to 4 people who are genuinely interested in knowing the absolute truth. Especially Russia and the Eastern Bloc people, I was amazed to see how they are so much interested to know what is the truth. They have never known God, they have never known divine, they have never known anything about it. Kundalini, of course, is very far away from them. But the way they took to Sahaja Yoga surprises me. In some villages we have about 30,000 surgeons. It's very remarkable how these people didn't take to materialism so much as they have taken in the West. And they know very well now that matter doesn't give you joy. It doesn't give you happiness. It doesn't give you fulfillment. There's something beyond this matter, beyond this mind, that we have to achieve. And that is what is Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is where Saha means with, Ja is born, with you is born. The right, the fundamental right you have to achieve this yoga, means the union with the divine. All the saints of this country have spoken about it. Why, even many people in England, as you know, that there have been William Blake. Now if you read William Blake, English used to think he was a mad poet. He's not. He was the seer. And he talked about it. In every country you will find somebody who has been speaking about this higher life and these inner value systems. For Sahaja Yoga, you don't have to argue, think, or put in any effort. Nowadays I found that the Buddhism is very popular in the West, because it appeals to their brains. It goes into their brains and they can think about it and argue about it. Nothing wrong with Buddhism. But as far as Buddha is concerned, he was all right. That was the time when he had to do this tapasya, as you call it, the whole penance. But these times are over. At that time, even Christ had to do also, and at that time Mahavira also had. Those were the times. But today's times are different. These are special times. I call them blossom time. And this is the time where many flowers have come up. These are seekers of ancient time, were seeking the truth. And today in these modern times, which we call as Kali Yuga, they are born to get the reward of their seeking. They may be Indians, they may be Germans, they may be English, they may be anyone. They have to get this reward
for their seeking what they have been doing, and the time has come today. When I say that, people think I am being very assertive, but it's a fact. The truth is that today is the time for them to get the reward of their seeking. They have already told you about the Kundalini and the inner mechanism. Even to know about that is just mental. Even to listen to my lecture is also mental. You have to go beyond your mind. So, there's something has to happen. And that happening is nothing but the awakening of the Kundalini, which is really the pure desire in your mind. Because with other desires you never feel satisfied. Unless and until you become the spirit, you will never be satisfied, you will never be happy. Especially the ones who are seekers today. Of course there are many who are seeking in money, materialism, or maybe in power. But they are not satisfied people. They have not achieved anything, they don't know the goal of their life. They are just moving with the winds, the way wind moves them. So to understand what is the purpose of your being, a spirit, is that this is, in a very simple manner, I would say, that to enter into the kingdom of God. It's not the kingdom of America or kingdom of India or anything like that, but it's the kingdom of God. It's all for your will. And as I said, as seekers, you are all respected and you all have to get. The problems with us are many, but I can put them in two categories. One is our ego and another our conditioning. These two things bind our life. We live in the past and the future, but we cannot stand in the present. But when this happening takes place, then you are surprised that the thoughts that were coming from the past and future just stop, and you are thoughtlessly aware. It's the first situation, first stage where you are thoughtlessly aware. This lasts for a short time. That's why Patanjali had called it as savichar, means with thought, awareness with thought. But in Sahaja Yoga I have seen this can be achieved very easily through certain time you give to your meditation, and only in the present, which is the reality, you grow. And thus you grow and reach a state which we call as doubtless awareness, which means also in Sanskrit is called as nirvikalpa samadhi. This is a state which has to be achieved in Sahaja Yoga. Now some people want to know, we want to have God's realization. I mean, all funny ideas. So many books are there, then they read them and then come, Mother, we want God's realization. Means what? What does it mean, God's realization? It can't explain. But what happens that your central nervous system itself gets enlightened by this happening, and the light of the spirit is felt by your central nervous system. As in our evolution, we have so many other capacities compared to animals that are all felt on our central nervous system. In the same way, our central nervous system itself gets enlightened, which is in Sanskrit language is used as Veda, from where the word Veda has come. Veda is to feel on your central nervous system. Another is Bodh. Bodh is to feel on your central nervous system. These things you can easily feel. On your central nervous system, your fingers get enlightened and you start feeling on your fingertips
all-pervading power of divine love. You can feel like cool breeze on your fingertips. They get enlightened. For the first time, you feel there is a power around you. Then when you grow, as I said, you start becoming collectively conscious. Collectively conscious. Not that you get self-knowledge, that you know about your own centers, but you become collectively conscious, meaning that you can feel others, their centers. All our problems in this world are from human beings, most of them. They all come from these centers. And if these centers are somehow are cured, then we are all right. And if we can help others to cure their centers, what will happen? A new race of enlightened people will be established. This is the time of last judgment. This is the time of last judgment where people have to judge themselves. If they want to go to hell, it's quite easy. And if they want to go to heaven, that's also quite easy. But the choice is yours. Nobody can force a human being to choose. That's his freedom. That's her freedom. Because freedom has been granted and cannot be taken away. So now for you it is important to decide today, tonight, whether you want to have your self-realization or not. I cannot force on it. I cannot. I respect your freedom. I cannot force it. So you have to decide. But remember that you are a human being and you are at the epitome of evolution. You are the glorious one. Your glory you don't know. You don't know how many powers you have. Unless and until you get your realization, you will know. For example, this instrument, if it is not connected to the mains, it has no identity, it has no meaning, it has no use. In the same way, your situation is, and once you get this realization, then absolutely it's a different world into which you enter. I'm telling you, we have here, I don't know, they say there are people from 60 nations, but whatever it is, if you see them, you'll be very happy. Everybody describes them as angels. They don't fight, they don't quarrel. There's no argument, nothing. They enjoy each other. They love each other. Apart from that, of course, they are enjoying each other by also they pull each other's legs, that I know, and sometimes make fun. But that's how they live. There is no malice, there's no hatred, there's no jealousy, nothing. Nobody is bothered about these useless things. So this is what has to happen. And for that, this is the country where you have already so many blessings of divinity that you can easily get it on this soil which is so auspicious. आप लोगों से यही कहना था कि आप सत्य को खोज रहे हैं और खोज भी नहीं रहे। बहुत लोग तो यूं ही जाना है मंदिर चले गए, जाना है मस्जिद चले गए, जाना है गुरुद्वारे चले गए। वो ये नहीं जानते क्यों जा रहे, भाई अब सोसाइटी है, समाज है तो जाना ही पड़ता है माता जी। लेकिन वहाँ जा कर के आप क्या पा रहे हैं ये देखिए। कुछ तो कुछ खो ही गया। जो खो गई बात वो जैसे गुरु नानक के शब्दों में कहें कि काहे रे बन खोज न जाए, सदा निवासी सदा लेपा तोहे संग समान। अब दुनिया भर की चीजें करेंगे। फिर दूसरे ये गुरुद्वारे में मैं भी बहुत बार गई और देखती थी कि अखंड पाठ हो रहा है, सब रटे जा रहे हैं लोग। अरे कितनी बड़ी चीज कर गए हमारे लिए, इतना बड़ा ग्रंथ साहब, माने एक महान ग्रंथ है, उसके बस लाइनें पढ़े जा रहे हैं।
तभी कबीरदास जी ने कहा कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख हुए। उसके अंदर लिखा क्या है? कहे नानक बिना आपा चीन्हे पिटे न भ्रम की का। यही हालत हिंदुओं की, जहां पर यह कहा जाता है वेदों में, पुराणों में, हर जगह कृष्ण ने भी कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो आप जात पात कैसे बना रहे? जात पात क्यों बनाए? उसका परिणाम आप देख लें। अभी भी जात पात चल रहे हैं और इतनी जोरों में पकड़ आ गई है जात पात की, समझ में नहीं आता। ये सोचिए कि जिन्होंने रामायण लिखा वो कौन? वाल्मीकि, एक डाकू, और वो भी मछियारा। उनको ढूंढ करके रामचंद्र जी ने कहा तुम्हें मेरा रामायण लिखो, और कोई उनको मिला नहीं, कोई शुद्ध ऐसा आदमी नहीं मिला। एक डाकू को पकड़ लिया। और गीता किसने लिखी? गीता जिसने लिखी वो कौन था? एक भीमरीन का इलीगल बच्चा, उसने लिखी है। ये बताइए इससे क्या जाहिर होता? शबरी के बेर खाए उन्होंने झूठे। ये सब किस लिए किए? उनको क्या जरूरत थी ये सब करने के लिए? सारा नाटक दिखाने के लिए कि जो मनुष्य साधु तत्व को प्राप्त हुआ है, वही जिसने ब्रह्म को जाना है, वही असली ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को जानने वाला आज है कौन? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तो ये जात बनी कहां से? किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया। ये जन्म से जात बाद में हुई। तो ये जो हिंदू धर्म की विटंबना हुई है वो तो देख ही नहीं जाती, और उसी के अनुसार सब कुछ अभी भी हम चल रहे हैं और सोचते हैं यही बड़ा हम धर्म का कार्य। गुरु घंटारों की तो कमी नहीं, गली गली में आपको गुरु घंटार और तांत्रिक तो आपके दिल्ली में बहुत से बैठे हुए, उनके चरणों में भी बहुत से लगे हुए। इसके बारे में कितना लिखा गया है कि असली गुरु कौन है। नानक साहब ने तो एक पूरा चैप्टर लिख दिया। असली गुरु कौन? जो आपसे पैसे ले। बताइए, क्या भगवान को पैसा समझता है क्या? अरे ये तो मनुष्य ने अपना सरदन बनाया है। उनको क्या बैंक समझता है, पैसा समझता है? उनको बेच रहे, धर्म को बेच रहे, गप्पे लगा रहे हैं झूठी झूठी, हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, और तुम्हारे बाप का खजाना वहाँ गड़ा हुआ है, और तुम्हारे फलाने का ऐसी दुश्मनी है। आपसी सब झगड़े लगाने की बातें। उनका अपना स्वयं का जीवन भी देखना चाहिए कि इनका जीवन कैसा है। ऐसे आदमी का स्वयं का जीवन कैसा है? उसके जीवन में कोई शुद्धता है, कोई प्रेम है, कोई समझ है, कोई ऊंचाई है, कोई ज्ञान है? कुछ भी नहीं। और बड़े साधु बाबा बन के बैठे हो, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की अकल हो गई है। सब लोग जहां जा रहे हैं वहां चले जा रहे हैं। एक पुरानी कथाएं थी, उसमें से एक थी कि एक के पिताजी ने कहा कि देखो बेटे, जहां सब लोग जाते हैं वहीं तुम जाना। अच्छी। तो रास्ते पे चौराहे पे खड़ा तो सोच रहा था कि कहाँ सब लोग जा रहे हैं, चले उसके पीछे पीछे चले। वो सब लोग स्मशान की ओर जा रहे थे, ये भी बेवकूफों के पीछे चले। जो बुद्धि एक हिंदुस्तानी के पास है, बहुत कम लोगों के पास, बहुत सुलझी हुई, सूझबूझ, बुद्धिमान, सब कुछ होते हुए भी बेवकूफियों में इनको कोई ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते हैं समझ में नहीं आती। लेकिन जो असल वाले यहाँ के गुरु घंटाल थे, एक तो अभी बचे हैं, वो सब चले गए विलायत। अच्छा हुआ क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। हम लोग इसलिए बच गए कि हम लोग इतने पैसे वाले नहीं। ये परमात्मा की कृपा ही हो गई
नहीं तो वहाँ तो जैसे मैं देखती हूँ लोगों को तो रास्ते में लौट रहे हैं। ये हालत उनकी हो गई कि उनकी बुद्धि इतनी नष्ट इन्होंने कर दी। अभी एक साहब है, वो बताते हैं कि ऐसे आप दूसरों का जो मन है वो ऐसा जीत लेते हैं और उस पर काबू कर सकते हैं। और वो हाथ में एक पेंडुलम घुमाते हैं, एक आदमी खड़ा कर देंगे, देखिए मैं इसका पेंडुलम घुमाता हूँ, और सब लोग वहाँ अमेरिका, हाँ, बेचारों ने कभी देखा ही नहीं ऐसा प्रकार। क्या हम लोग पेंडुलम घुमाने के लिए पैदा हुए हैं? और कोई धंधा नहीं बचा। नहीं तो दूसरे साहब फरमाते हैं कि आप 3 फुट पे आप उठ जाएंगे, बताइए। और बड़े बड़े यहाँ के अफसर लोग उनके शिष्य हैं, वो 3 फुट पे उठ के करना क्या? अभी इतना रास्ते में जाम था, ये 3 फुटे वहाँ जाके तो होता क्या? ऐसे रास्ते में जाम है। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें लोग मानते हैं और हज़ारों हज़ारों रुपया देते। अपने देश में और चाल है, उधर और चाल है। वो तो समझ गए कि इधर के बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं, जो कहोगे वही ठीक है, जैसा बताओगे वही ठीक है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोग जानते हैं कि ये गंदगी है, ये पाप है, ये दुराचार है। वो नहीं जानते बेचारे, तो वो लोग तो इतना उड़ गए और हम लोग अभी भी नहीं सोचते कि कुछ तो हमें पाना ही है। आखिर हम इस दुनिया में आए, क्या हम जिंदगी ऐसी बर्बाद करने के लिए आए? अब ये सब ज्ञान सहज का जो मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा कि ये कोई मेरा ज्ञान है, ये तो अनादिकाल से देश में है, चल रहा है। कबीरदास जी ने कहा, ईड़ा पिंगला अनहद नाड़ी, सुखमन नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी, सा शून्य शिखर पर अनहद बाजी। पर कोई समझता ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ उन्होंने बिहार में इतना काम किया, वहाँ लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती तो कुंडलिनी को कहता हूँ, सुरती चढ़े कमान। अरे भाई, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। हर एक चीज़ का विपर्यास करने में कोई लोग बड़े होशियार होते हैं और हम बेवकूफ़ होते हैं, उनकी बात मान जाते हैं। ये देश कितना महान है, इसकी महानता कितनी है, ये तो जब आप सहज में उतरेंगे तब सब समझें। जब ये हमारे विदेशी सहयोगी यहाँ आते हैं तो पहले एरोप्लेन से उतरते ही इस जमीन को वंदन करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि इनको चैतन्य क्या है मालूम। ये चैतन्य को पहचानते हैं और जानते हैं कि इसकी पृथ्वी में से ये चैतन्य बह रहा। और आप लोगों ने भी कम पुण्य नहीं किए होंगे जो इस पृथ्वी पर आप पैदा हुए। ये भी महान पुण्य का काम। इस पुण्य की वजह से आज आप यहाँ पैदा हुए। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं, तो माँ हमारी गरीबी करता है। ठीक बात, गरीबी कहाँ से आती है? पहले ये बात सोचना चाहिए। स्वार्थ से आती है। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, 1 पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आकर मुझसे कहा कि माँ मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहते मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आया मेरे पास। उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगी। उसने उस वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगी। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार।
आपके लिए चमत्कार हो गया? ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए, ये जो कुंडलिनी है, ये जब जागृत होती है तो ये जब 6 चक्रों में से गुजरती है, और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित करती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भरती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज़ ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हजारों लोग ठीक हो जाते। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, ये आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज़ वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी जड़ के सारे काम ठीक। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात, ये झूठ बात है। किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आए, पार होने के लिए आए, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो गई। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश है। कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती। पर कोई सुनते ही नहीं। कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है, देखो। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर, मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइजर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात, किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई है। अरे भाई, इससे खेती करो। खेती करने से देखो, आपको 10 खेत दिखाई दे और उसमें से एक हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज़ पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध दे सकती है। बड़ी हैरानी की बात, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपजता है, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो एक दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं। एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिखते थे, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज़ हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो। नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट्स। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब, मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं करे, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं, जो खोज लगाते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया, उसमें से आप एक आइंस्टीन का। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया। हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज करी। और मैं इतनी शर्म के मारे मन समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ मैंने काम क्यों नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज़ है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ, इतने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत। ये बात जरूर है कि पहले एक गुरु, एक ही शिष्य गुरु, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा थी। पर 12वीं शताब्दी ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु के भाई साहब उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाज़त आ।
और जब उन्होंने लिखा छठी, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और इस कुंडलिनी के कारण ही आप आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक्त जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निश्चित कोई पढ़ो ही नहीं, इसको जान लो, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हों, कोई धर्म मार्तंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोकशाही हो। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य हुए। नाथपंथियों ने ये कार्य किया। अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए, उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और उससे वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ काम किया। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते। नामदेव एक दर्जी था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में दर्जी की क्या है, कोई बड़ी बारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती, एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा कुमार। वो कुम्हार वो अपने पांव से मिट्टी तोड़ रहा था। उसको देख करके नामदेव एकदम हठा, शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा, निर्गुणाचा बेटी आलो सगुणाची। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है। ऐसी बात कौन करे? कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है? हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो ही शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता है कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ। फिर वो गए पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकती। ये आँख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों का। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूँगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे, माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह से। सबों ने कहा कि शराब मत पी। मोहम्मद साहब के ज़माने में उन्होंने कहा शराब मत पी, लेकिन सिगरेट कब नहीं की? वो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पी। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है, घर के अंदर पब खोले। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो पब। ये जो चीज़ आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। और सहयोग में आप समर्थ हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ, और आप कहें कि आप बहुत जिद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूँ। और फिर कितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अंत में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा ये सांप। लेकिन जब जरा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ दे, फट से चीज़ छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीज़ें बैठ गई, वो पूरी तरह से छूट जाती। मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बताएं
कि अपने शहनाई के तो बड़े मशहूर शहनाई नवाज हैं, आप तो जानते हो बिस्मिल्लाह खान साहब, वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिस कर दिया, ये तो खालिस हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिस हो गए। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, उससे पूछते हो। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछो, किसका खालिस्तान बना रहे हो। खालिस का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो गए। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत की। ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि क़ियामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब क़ियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ कहा गया। वो कहाँ गया? ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, Thou shalt not have adulterous eyes। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से किसकी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल है, मिलेंगे नहीं। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह ये है कि वो शक्ति अंदर नहीं। जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर के, निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके रवैये हैं उसके साथ नहीं चलना चाहिए, और न ही इनकी जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या हाल है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, इसको कहना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति, उसमें हम लोग बहुत पा सकते हैं और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल अगर आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करा। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत है। अब आपसे बताया, आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो गए, कोई शक नहीं। पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग हों परदेश में तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार झूलने के बाद, पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहाँ चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे, कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इतनी गहराई थी है, ऐसे ऐसे लोग इस देश में हो गए, उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई को, इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात है कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, एक साहब आए थे बता रहे थे मुझे कि वहाँ हमें इतनी परेशानियाँ थी तो अपने आप भाग गई। परेशानियों को परेशानियाँ, अब हमें कोई परेशानी नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हो, यही तो समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछने आया। मैं कभी मुझसे मत पूछो। ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना है, ऐसे प्रेम की दुनिया में आपको ले जाना है जहाँ ये प्रेम निर्वाज, इसमें किसी तरह की कलुषितता नहीं, कोई चीज इसमें निर्वाज्य का मतलब है कि इससे प्यार भी तक नहीं मांगा जाता। माने ये कि बस प्यार करने का ही मतलब। अभी देखिए मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानी को कौन सी चीज़ अच्छी है, वो हम ले आते हैं। और मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया, कहने सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं कैसे बांटूँ, तो इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतनी सोच सोच के लाए, कहने यहाँ अच्छी सुइयाँ नहीं मिलती तो सुइयाँ लेके आ गए, यहाँ कैंचियाँ अच्छी नहीं मिलती तो कैंचियाँ लेके आ गए। बताइए इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में इस तरह की ये अभी इनका टूर होने वाला है, 400-500 आदमी,
ये जहाँ रह रहे हैं इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रहे। पूछे कैसे? वाह वाह, बहुत आनंद। हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद। अभी क्या बात किया है, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच बात चाहिए, ये ऐसा नहीं करें। हिंदुस्तानी की तो और भी कमाल है। इनका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुणे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ होता है। अब बताइए ये कैसे हो गया? ये लोग कैसे बदल गए? इनके विचार कैसे बदल गए? ये सब कुछ कैसे समझने लगे? दे प्यारे हैं, और यहाँ भी जो सहयोगी है बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है कहीं? एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है, तो नहीं रे बाबा, माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं, इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब थे, वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता हूँ, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तव में प्यारे हैं, बहुत प्यार बने, लेकिन भूल गए अंधकार, अपने बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए अब अपना ज्ञान कर रहे। ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही कुछ आप जान सकते। और इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, पहली बात समझ लीजिए। हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता है, लाके मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वाया, मैं कहा भाई मैं पैसा नहीं देती, अच्छा 1 रुपया ले। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य कर सकता, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में, और फिर उसके बाद पैसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए ये चैतन्य का खेल है, और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं चाहिए। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचे कि इससे चोर कोई और नहीं सकता, उसको भगवान का भी भय। हाँ ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो सब कुछ, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज है पैसा? लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, बहुतों ने बताया कि वहाँ सहज में आते ही हम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो, पर ये भी एक बुलावा है, तो उससे भी आगे जाना है, और आगे जाकर अपने आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है उसे उठाना है। उसी आनंद में सारा ज्ञान आपके सामने खड़ा होता है, क्योंकि आपके अंदर सब है, सिर्फ उसे जागरूक करना है। उसमें हमारे कोई उपकार नहीं, कोई लेन देन नहीं करना। यह आपका अधिकार, इसको हम दे रहे हैं, यह आप ही का अधिकार है, और इसे आप प्राप्त करें। इसके लिए कोई उपकार मानने की जरूरत नहीं, किंतु अपने को जरूर समझे कि हमने ये चीज पाई थी, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो माँ ही हूँ, और मैंने दी भी नहीं। आपकी अपनी वस्तु आपने प्राप्त की है, लेकिन इतने मूल्यवान वस्तु को रास्ते पर नहीं फेंका, और नहीं उसका महत्व कम करना, बहुत महत्वपूर्ण। इसे हर एक तरह का प्रश्न ठीक हो जाएगा। ये तो माँ का कहना, प्रलोभन देना चाहिए ना, कुछ न कुछ बताया, प्रलोभन से लोग फंसते हैं, लेकिन असल में बात यह है कि इसको पाए बगैर तुम्हें बेटे चैन नहीं आने वाला। मैं ये सबसे कहती हूँ, इसके बगैर किसी को चैन नहीं। और इस देश का भविष्य ही है, यहाँ अनेक सहयोगी होने वाले हैं, अनेक। और फिर देखिए, लोग बहुत पूछते हैं माता जी हमारे देश का क्या भविष्य? मैंने कहा बहुत उज्ज्वल। इस पर यह है कि आज यहाँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद आप लोग इस पर मेहनत करें। कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाता है, वो ठीक करें। उसके लिए यहाँ सेंटर्स हैं,
और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये एक सामूहिक व्यवस्था है, एक यह सामूहिक व्यवस्था, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप अपने घर में या बैठे हुए सहयोग करें, वो भी करना है लेकिन सबके साथ मिलना है। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं बढ़ता। अगर आप इस संगठित सामूहिक चेतना से चेतित इस एकमेव शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप हैरान हो कि जिस तरह से लोग आपकी मदद करें। यहाँ किसी को कुछ बीमारी होगी तो जर्मनी से वो दौड़े आ, किसी को भी खबर कर दीजिए, भाई देखो ये बात, हाँ साहब वो वहाँ पे बैठे हैं, उनको खबर करिए माँ, वो जानते हैं, वो आ जाएंगे। सारी दुनिया आपके साथ, सारी दुनिया में आपकी असली रिश्तेदार है। यही कहूँगी कि ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ऐसा दिन आने वाला है जब ऐसे लोग आएंगे और ऐसा ऐसा काम होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ा सुंदर वर्णन है, सब जगह इसका वर्णन है। बस ये समझ लीजिए और विश्वास कर लें कि ये समय आया है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो इसका लाभ उठा सकते। सबको अनंत आशीर्वाद। ऐसे सरक जाओ बेचारे, वो आराम से नहीं बैठे हैं, आराम से बैठा। क्या है मेरी पे? अब देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि सबके सामने इस बिटिया को लाके बिठा दें। अब यहाँ लोग आत्म साक्षात्कार के लिए आए, हमारे यहाँ मंदिर में लोग जाएं तो सबकी बीमारियाँ ठीक हो सकें, लेकिन इनको अपना स्वार्थ सूझा कि चलो बच्चे को सामने जा बिठा दो, इससे सब लोग डिस्टर्ब हो जाए, हैं? ये गलत बात। यहाँ लोग आत्म साक्षात्कार के लिए आए, उसको तो ठीक कर सकते हैं, कोई टाइम ही नहीं लगने वाला। आपको पता है एक यहाँ के डॉक्टर साहब को MD मिली है एपिलेप्सी, MD, लेकिन कोई आएगा नहीं, माँ के ही सामने, माँ ही ये ठीक करे, माँ ही ये काम करे, सब ऐसे ही लोग सामने आए, जो जहाँ जो काम करने का वो करा। आज आत्म साक्षात्कार की बात, समझे ना, समझे ना बेटा? अब तुम आओ, तुमको मैं ठीक कर दूँ। हाँ हाँ रानी बेटा हो जाए, अब रहने दो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इतने लोग बैठे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनको MD मिल गया। आपको सामने ऐसे बेटी को लेकर नहीं बैठना चाहिए था। अब हमारी शक्ति चल रही ना, उसमें नुकसान होता है बच्चों को। अब बाहर ले जाइए तो अच्छा है, मेरे ख्याल से बाद में मैं देख लूँगी, मत रो बेटा, मैं ठीक कर दूँगी, रोने कोई बात। पर आप लोग मंदिर में नहीं आए, वहाँ आकर के आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। हर एक चीज़ में एक अजीब चीज़। अब वहाँ अगर थोड़ी देर ठहरना पड़ा तो मार तूफान। अरे भाई, आखिर अस्पताल में भी जाते तो वहाँ भी ठहरना पड़ता है। हाँ, उसको फिर अटैक आएगा, आप ले जाइए बाहर तो अच्छा, क्योंकि इस वक्त शक्ति बहुत चलती है ना। हाँ, नहीं, let her go back, I think. Let her go outside a little bit, otherwise she might get another attack. Slowly. अभी अभी ठीक हो जाएगी। अब सबको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे ही आपकी बेटी है ना, मेरी भी बेटी, आप चिंता छोड़ो, उठा के ले गई। आप सबके लिए कहना है कि जिसको जो भी तकलीफ हो, आप कृपया मुझे चिट्ठी लिख कर दे दीजिए, अभी हमें ये तकलीफ है या ये परेशानी है, और उसके बाद आप मंदिर में आए। यहाँ जहाँ तहाँ हमारे सेंटर्स हैं और सब लोग आपको ठीक कर सकते, ऐसी कोई बात, तो आप सब ठीक हो जाएगी। और होते ही हैं लोग, लेकिन आप आएंगे ही नहीं तो कैसे होगा? अभी यहाँ दूसरा काम कर रहे हैं। हाँ, बैठ जाइए, कोई बात नहीं।
मेरा भी जी खराब हो जाता, क्या करें। पर ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपको मैं बताती हूँ, सब दूर हो सकती है, आप थोड़ी सी मेहनत करें। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी बीमारी जो है ये बहुत आसानी से जाती है, बहुत आसानी। अगर इनका माँ अगर सहयोग करें तो वही उनको ठीक कर सकते। तो रिश्तेदार है वो लोग अगर सहयोग करें तो बड़ा फायदा है। अब फिर से कहती हूँ मैं कि जिनको आत्म साक्षात्कार लेना है वो लोग सब यहाँ हैं, और जिनको नहीं लेना है वो कृपया चले जाएं तो अच्छा है। और कोई नहीं, 10 मिनट की बात, हिंदुस्तानियों के लिए बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन कृपया सब लोग बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये पृथ्वी जो है उसमें सबसे महान देश मेरा भारतवर्ष, और इसमें आप बैठे हुए, बताइए आप विश्वास करें। अब सबको मेरी ओर ऐसे हाथ करना है, ऊपर उठा, बहुत ज़्यादा नहीं, सर्वसाधारण जो आप बर्दाश्त कर सकें ऐसे रखें हाथ, बहुत ज़्यादा यूँ नहीं, ऐसे रखें। अब मैंने आपसे बताया ना कि ये उंगलियां जो हैं 5, 6 और 7, ये आपके 7 चक्र, और ये जो 7 चक्र हैं यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में, इनको जागरूक करना, इनके माध्यम से आवाहन जाएगा सुकुंडली, इनके माध्यम से, बिल्कुल साइंटिफिक है। और डॉक्टर लोग भी मानते हैं कि सिंपैथेटिक के एंडिंग्स ये हैं, वो भी मानते हैं, पर उसका उपयोग वो नहीं जानते कि आगे क्या कर सकते, सीधे ऐसा। और चश्मा भी उतार दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि आँख के लिए भी ये चीज़ अच्छी है। अब आप आंखें बंद करें, और जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलें। कोई मंत्र नहीं करें, कहें, कोई विचार न रोके, कोई कुछ करने की बात नहीं, कुंडलिनी सब अपने आप कर लेती है। इसलिए बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से, और अपने अंदर पूरा विश्वास रखिए कि आज ही आपको आत्म साक्षात्कार घटित हो। आज नम्रता पूर्वक आप ये शुद्ध इच्छा है और इसे मांगे, तो माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए अपने मन में, आज ही ये घटित होने वाला है। इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा प्रदर्शित होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। अब आँख मत खोलिएगा, प्लीज क्लोज योर आइज and don't open them till I tell. You can remove your spectacles. इसका वॉल्यूम बढ़ाइए।
धीरे धीरे आँख खोलें. Please open your eyes slowly. Now, put your left hand towards me like this and bend your head and see through your fontanelle area, bone area, if you are getting a breeze, a cool, maybe hot. लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके, बेंड योर हेड पे, सर झुका करके, और राइट हैंड से आप देखिए कि आपके तालू भाग से ठंडी ठंडी या गर्म ऐसी कोई हवा आ रही. तालू है कि जो बचपन में एक स्निग्ध सा हिस्सा आपके सर में होता है जिसे तालू कहते हैं, उसको आप देखिए कि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है. गरम भी आ सकती है. गरम आ रही हो तो आप ये कहिए अपने मन में कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी. बहुत आसान है ये कहना. कह दीजिए कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, तो गर्मी भी चली जाएगी. सर झुकाने, सर झुकाइए, और सर के ऊपर नहीं, अधान की जिसको कहते हैं ऊपर वाले, उससे कुछ हट करके अब राइट हैंड में जोड़ करें और फिर से सर झुका. और अब देखें लेफ्ट हैंड से किसी किसी के बहुत नज़दीक और किसी के बहुत दूर, किसी की बहुत सूक्ष्म और किसी की बहुत ज़ोर से. इस प्रकार ये आती है हवा, इसे आप देखिए ठंडी या गर्म हवा. सर को झुका लें और किसी प्रकार की शंका न करें. अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी. अगेन बेंड योर हेड. फिर से अपना सर झुका के और राइट हैंड से प्लीज सी विथ योर राइट हैंड इफ देयर ए कूल और अ हॉट ब्रीज कमिंग. इफ इट इज हॉट then you have to say in your heart, Mother, I forgive everyone. अपने ऊपर शंका नहीं करें और ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा पापी हूँ, और ये सब बातें अभी भूल जाइए, क्योंकि ये जो परम चैतन्य, ये एक क्षमा का सागर है. आप कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकते जो इसके अंदर भूल न जाए. ये दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, और सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर है. अब दोनों हाथ ऊपर करें और आकाश की ओर देखें और एक सवाल पूछे, माँ ये क्या परम चैतन्य है? आज पहली मर्तबा आप लोग महसूस करें. प्लीज आस्क द क्वेश्चन, मदर इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, और मदर इज दिस द डिवाइन पावर ऑफ लव. For the first time you are feeling it, just lift your head upward and see for yourself. You'll feel on your hands, your fingers. Now put down your head. Again, please put your hands towards me. फिर से मेरी ओर ऐसे हाथ करें और मुझे don't think. You can do it. First state of Nirvichar Samadhi, of thoughtless awareness. Don't think. Just don't think. अब जिन जिन के हाथ में ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा आ रही हो, या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, all those who are feeling cool breeze or hot breeze on their hands, on the fingertips or through their fontanelle bone area, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें. Please raise both your hands. All such people who are. देखिए, देखिए ना कितने साधु संत. आप सबको हमारा प्रेम पूर्वक नमस्कार. साधु हो गए, आप संत हो गए. सारी दिल्ली
मौज में रहो, आनंद में रहो और सामूहिक में आना। यहाँ हर जगह हमारे सेंटर है। मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे बीज जो बोए हैं और उसमें से जो अब पौधा निकल आया है उसके बड़े बड़े वृक्ष हो जाए। All these seeds which were sown have now become beautiful. क्या बेटे? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बैठो बैठो, हो जाएगा, हो जाएगा। सबूरी सबूरी। क्या कह रहे? ठीक हो गया? बस अब क्या है और क्या चाहिए? बस सब लोग ठीक हो जाओ। अब ऐसा है कि किसी किसी को एकदम से ठीक हो जाता है, प्रोग्राम में ही ठीक हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। और कुछ लोगों को थोड़ा आना पड़ता है। जो भी हो, आपको ठीक होना है तो उसमें क्या हर्ज है, एक आध दो बार और आना पड़े तो। और बहुत से लोग ऐसे ही अकस्मात ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई बड़ी बीमारी हो जाता है, ये अभी भी बैठते पैरों में हाथों में झंझनाहट हो जाती है, लेकिन ही कैन कम इनटू सेंटर। आप सेंटर में तो आइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। आप सेंटर में आइए और आपके लिवर खराब है, वो आपको बता देंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है और उससे सब तकलीफें आपकी दूर हो जाए। अच्छा, पर आपने कुछ उस पर प्रयत्न ही नहीं किए तो फिर उसमें क्या शिकायत करें? पहले कुछ प्रयत्न करो और अगर उसमें फ़ायदा नहीं हुआ तब ठीक है, आप आके तो देखो। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठाकर कह सकते हैं कि उसमें सहयोग में उन्हें फ़ायदा हो? बताइए। हिंदुस्तानी बहुत फ़ायदा। देखिए कितने लोग बैठे हैं, तो आपको क्यों नहीं होगा? भाइयों को किया जाता है। I am just saying that all those who have who फायदे को क्या have got some sort of a benefit out of Sahaja Yoga. Those who have got some benefit out of Sahaja Yoga, you put up your hands. वाह भाई वाह। देखिए अब जब इतनों को फायदा हो चुका है तो अब क्या और क्या इससे बढ़ के वो चाहिए। पूरी दिल्ली में हमारे बहुत सारे सेंटर हैं और उसका एक चार्ट बना हुआ है, पर्चा है, वो आपको मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के फॉलोअप के लिए सर हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है निजामुद्दीन में, भारतीय ग्राम स्काउट ग्राउंड जो है वहाँ पर 11 बजे आप जो आइए। जिस किसी को अगर नहीं भी फील हुआ है, हम लोग आपके ऊपर कार्य करेंगे और वहाँ पर आप इसको महसूस कर सकेंगे। हमारा एक मेन सेंटर है छोटू भगत के पीछे, जितने हमारे पोस्टर लगे हमने उसका एड्रेस लिखा हुआ है। आप हर सैटरडे को प्रोग्राम होता है, वहाँ पर आइए। बुधवार को एक सेंटर हमारा चलता है नए लोगों के लिए सफेद में, वहाँ पर आइए। किसी भाई को कोई भी तकलीफ है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हम सब लोग वहाँ पर डील करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग नहीं डील कर पाते हैं तब हम लोग उसी माता जी से प्रार्थना करते हैं, वो आपको मदद करती है। मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग कृपया सेंटर पर आइए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सब पूरा फायदा होगा। कल दिन में 11 बजे भारतीय स्काउट ग्राउंड निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने है और 8 तारीख को सत्येंद्र किए वाले आश्रम में है। इसका पता है आपको मिल जाएगा शाम को 6:30 बजे। एक आध गाना गा दो फिर हम चले जाएंगे। आज तो सब ये फॉरेनर्स गा रहे हैं, देखिए
आप सोच नहीं सकते, मराठी में भी गाते हैं बहुत अच्छे से, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कौन गा रहे हैं। और इनको तो एक शब्द भी हिंदी का सिखाना माने बहुत ही कठिन चीज थी। बैठ जाइए, एक गाना सुन के जाइए, अच्छा लगेगा। बैठ जाइए, एक गाना सुनिए, अच्छा लगेगा। अब आनंद आएगा गाने का। बैठो जैसे, वो तो बता रहे ना कि आप लोग आइए तो वो सब बताएंगे। और कल आप आइएगा, कौन सी तारीख को? कल बुलाए, कल 11 बजे आइए। और उसके बाद इनके सेंटर्स हैं सारे दिल्ली भर, बहुत सारे सेंटर, सब बता देंगे आपको। 1 महीने में आप गुरु हो जाएंगे, अपने भी और सबके भी। ना 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 ना, नो नो नो, एक कुछ करे, ये क्या कर रहे हो? Not this song. This is for Maharashtra Desha. We are not sitting in Maharashtra Desha. All right, sing some other song. क्या कर रहे हो बताओ ठीक से कोई गाना। वो नोएडा वाले जो साहब थे वो अच्छे थे, लड़का वो अच्छा गा रहा था। तुम्ही सांगायला पाहिजे ना, त्यांना काय माहिती बिचाऱ्याने, त्यांना वाटतं महाराष्ट्र देश आहे। हिंदी मध्ये म्हणा, 7 जन्म चांगला है। ये गाना इन्हीं लोगों ने बनाया, उसकी ट्यून भी इन्हीं ने लगाई है।
जाइए, 1 मिनट बैठ जाइए। ये लोग और एक गाना सुनाना चाहते हैं, सब खुश हैं। ये गाना गुरु पूजा में गाना, गुरुओं से क्या मांगना चाहिए?
लाइट 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 अनिल लाइट भाई साइड पे रहिए। अनिल लाइट चाहिए इसको छोड़ दो यार अनिल लाइट नीचे से नीचे लाइट किरण जाएगी देखिए। शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की जय, आदि शक्ति माँ की जितना ले सका उतना ले लीजिए। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी की। जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से चलो, धीरे 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 धीरे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कैमरा उठा के ले ले अगर बंद कर दे। पेड़ बंद कर।